Gurudev Sri Sri Ravi Shankar has taken spirituality to the farthest corners of the world. His meditation and breathing techniques have deeply touched and transformed the lives of over 450 million people in 156 countries by helping them find freedom from stress and negativity. He inspires the highest human values of love, compassion, and togetherness by uniting people from all cultures in a spirit of service and belongingness. He has shown us again and again that the whole world is indeed one family. Anand L. Rai made his foray into cinema with a commitment towards creating relatable content that meets both popular expectations and critical approval. Apart from directing blockbuster projects such as Tanu Weds Manu and Ranjana, he holds the enviable track record of producing back-to-back content-driven hit entertainers and timeless stories that have since become immortal. Presenting Anand L. Rai in a heart-to-heart with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. गुरुजी, हाँ आनंद, how are you? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, very good, very nice. मैं अभी बोल रहा था, आपके मुंह से अपना नाम सुन के मेरे को अपना नाम इतना अच्छा कभी नहीं लगा था इससे पहले. गुरुजी, मैं दिल्ली में था जब आपसे पहली बार बात हुई थी. एंड मुझे ऐसा लगा जैसे जब आपने मेरा नाम लिया, मुझे लगा ये मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं. मैं मेरी कमियां, मेरी ताकतें सब अच्छी तरह से जानते हैं. मैं इनके सामने अपना दिल का सब कुछ सामने रख सकता हूँ खोल के. तो गुरुजी, मेरे को सबसे पहला सवाल ये था आपसे. आई वांटेड टू नो व्हाई इज इट सो इजी टू फॉल इन लव विद यू. Oh, well, I don't know. I have no idea. Because it is like it's like the kind of affinity you give is such immense that you feel like you it's like you become a family instant without taking a time. Perhaps I feel that way with everybody. I don't feel anyone is foreign to me. कोई मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई भी पराया है. सब में मेरे को लगता है ये तो मेरे अपने हैं. हो सकता है वो रिफ्लेक्ट होता होगा. यही है, ये रिफ्लेक्शन ही है गुरुजी. अदरवाइज मैं वही कहने वाला था कि आपकी डिक्शनरी में तो स्ट्रेंजर वर्ड ही नहीं होता होगा. देयर इज नोबडी स्ट्रेंजर. नो, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ, वहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ. मैं वो सबको मुझे ऐसा लगता है सब मैं जानता हूँ, मेरे ही हैं पुराने. That's the reason that people want to share their life with you. That's one reason you feel so comfortable when we talk to you. We feel like कि अपना पेन, अपना सॉरो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी गिल्ट आपके सामने खोल के रख दें. अपनापन का यही है विशेषता. तो जी. So गुरुजी, the next thing was जब आपने अपनापन की बात की है, this love, we talk a lot about it, that love should be unconditional. This word has been said so many times, unconditional, but we take a lot of time to understand this thing called unconditional. We attach love with so much of we tie love with so much of reasons and conditions that ये unconditional कुछ नहीं रहता. So Guruji, how is it possible to get into that state of mind when things get unconditional, the love get unconditional? you know, it is very simple. When you see a child, the child's smile is unconditional. When a child looks at you, there is love. Same with, you have puppies at home. You feel this. There is a sense of connection that, in that very innocent state of mind, right? Right. So, Right. Later on when our mind gets into it, it just spoils the whole thing. Rather, it makes it so complicated.
हम सोचते हैं because of these characters I love somebody, because of this, or if I have this or I don't have this. इस तरह से we put so many conditions, but you will see truth always surpasses all these conditions we put for ourselves. ट्रू ट्रू गुरुजी, मैं तो हमेशा कहता था, मेरे को लगता है कि आई लव यू के साथ बिकॉज वाला सेंटेंस ही नहीं बनना चाहिए। ये इमोशनली गलत नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर में ही गलत प्रूव कर देना चाहिए। आई लव यू बिकॉज, इस बिकॉज के ना मार्क्स कटने चाहिए। यू शुड बी लाइक इन द एग्जाम दे शुड डिडक्ट मार्क्स। आई लव यू शुड नॉट कम विद बिकॉज। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे आप। आई लव, इवन इफ यू से आई लव यू, it's an action, it's a verb. Actually you are love. I am love, you are love. हम जो कुछ भी है प्रेम के ही फवारे हैं सब कोई। तो बात तो यही है। एक दीपक ये नहीं कहता कि मैं रोशनी फेंक रहा हूँ, वो फेंक नहीं रहा, वो जल रहा है। लो जल रही है तो रोशनी फैल जाती है अपने आप। ऐसे ही हम, एक बच्चा ये नहीं कहता कि आई लव यू नहीं बोलता बच्चा, ही इज सिंपली लव, ही इज जस्ट ए बंडल ऑफ जॉय, सो दैट जॉय इज इन्फेक्शियस। एक बच्चा आनंद का एक जैसे बुदबुदा है, उससे वो फैल जाती है। हाँ, एक बच्चे को कभी आई लव यू नहीं कहना पड़ता, वो ना। उसका the kid has got its expression of I love you rather than the words. हमारा होना ही काफी है, होने से ही होता है सब कुछ। So Guruji, the next thing is which बहुत सारी चीजें आपको पता होती हैं, you have all the knowledge. Maximum time I say I know this, yeah, I know that. But how to get to a point where this knowledge becomes the wisdom? How to get into that space जहां पे मैं ये बोल सकूं कि हाँ, ये सिर्फ मेरे लिए नॉलेज नहीं है, this makes me a wise man. How a knowledgeable man can become a wise man? एक्सपीरियंस से। एक तो पढ़ी सुनी ज्ञान है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, मगर जीवन में जब उतर आता है परिस्थितियां हमें सिखा देती है। यही तो आप करते हो ना आनंद, मूवियाँ बनाते हो, वो किसी एक सिद्धांत को लेके लाइफ में उसको उतारते हैं। अब वो जीवन में उतरता है तो लोग उसके साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं, अरे मैं भी वो हो सकता था, वो आदमी हो सकता था। इस तरह से वो जीवन के साथ वो होना पड़ेगा, नहीं तो सिद्धांत ऊपर ही ऊपर रह जाता है सिद्धांत। जी जी, नहीं तो हमारी आधी जिंदगी इसी में ही बीत जाती है कि ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूं, बट मेरे जीवन पे इसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मतलब उतरता नहीं है। हाँ, कि मैं इस नॉलेज से किसी और का भला नहीं कर पाया। आई वॉज अनेबल टू गिव दिस टू समबडी एल्स, इससे किसी और की जिंदगी बेहतर नहीं कर पाया। हाँ, नहीं वो मैं यही कहता हूँ, जो प्रैक्टिकल है वही सच में नॉलेज है, बाकी तो जस्ट आइडियाज हैं। अभी मुख्य बात है जैसे जैसे वैसे स्वीकार करो। अब घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, आप 10 बार बोलते हो उसको समझ में नहीं आता, वो सुनते नहीं है। अब क्या करोगे? वो तो अभी मान लो 80 साल के बाद कोई व्यक्ति बदलता तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको स्वीकार करना पड़ता है। हम स्वीकार करते हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं ना। मान लो कोई व्यक्ति वही बातें बार बार कहता है, तब हम ये कहेंगे कि तो अपने भीतर झांके देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे भीतर इरिटेशंस हैं। ऐसे तुम भी किसी से बात करते तो उनको भी इरिटेशन होता होगा। अब इस इरिटेशन तुम्हारा अपना अनुभव है कि दूसरों के ऊपर थोपोगे? दूसरों के ऊपर। है? तो आप अपना अनुभव मानोगे तो अपना सहन शक्ति बढ़ाए, हम उससे और थोड़ा पेशेंस बढ़ाते जाएं। तो ये इस तरह से
हमें अंतर्मुखी होके बार बार हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। ये कोविड का ये जो सिलसिला हुआ, समस्या हुई देश में, ये एक बड़ा मौका दे दी लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए, अपने ही मन को पहचानने के लिए। नहीं तो हम ऐसा रहते हैं जैसे ये स्लॉट मशीन होता है ना, तो पैसे डालो, एक बटन दबाओ फिर वो आ जाता है, कोक आ जाता है, पेप्सी आ जाता है, कुछ इस तरह से हम रिएक्टिव मशीन बने रहते हैं जीवन में। बने रहे। वो रिएक्टिव मिशन से बदलने के लिए होश जगानी पड़ेगी। तो वो शायद इस बार ये वाले फेज ने, इस लॉकडाउन ने, इस कोविड ने हमारे साथ किया है। वही गुरुजी मैं पूछना चाह रहा था, दैट इज दिस लॉकडाउन इज अ फेज और इट्स अ पनिशमेंट और इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यू नो। It's how you view it, how you see it. You know, if you feel in a negative mindset, you will see this is a pain, and then you keep suffering. And if you are moderately positive, not fully, then you think that, well, we did something wrong with the nature, it's a punishment, okay, let us take it. But if you have full positive mindset, you always find an opportunity in every crisis. So it depends on our mindset, not actually on the situation as such. ट्रू गुरुजी, कि अगर हम इसे फेज मान लें तो ये बीत जाएगा, अगर हम इसे पनिशमेंट मान लें तो एक लेसन देके जाएगा, और अगर इसे ब्लेसिंग मान लें तो ये लाइफ बन जाएगा। व्हाट आई एम एबल टू गैदर व्हाट ही सेज। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इसको अपॉर्चुनिटी मान लें, बहुत से आइडिया सूझेगी कि इस सिचुएशन से हम कैसे एक नया संसार खड़ा कर सकते हैं, दुनिया खड़ा सकते हैं। इसके बाद अभी इकोनॉमी में इतना डाउन हुआ तो लोग काफ़ी डिप्रेस हो गए कि बोल रहे थे अभी आगे कैसे चलेगा, फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगी, धंधा कैसे चलेगा, ये सब चिंता है लोगों के मन। मैं बार बार इनको यही कहता हूँ, इसमें ये सब सोचे कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको, अब आगे से आगे बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मीन्स, और आपको जो एक चीज यू फील वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस टाइम, एंड दैट टू इवन इन अ रिलेशनशिप गुरुजी, दैट आपको लगता है कि आप बहुतों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। That is a mindset that stops you from doing good to others. You know, even in a relationship, we say, "Here, I am giving so much. How to get?" That's what I always feel, that मुझे लगता है मैं अपने हिस्से का तो कर रहा हूँ, पर मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। This is a very human tendency. Nobody is doing anything for me. I am doing it for everybody. So how to get rid of this thing that somebody has to do something for me, then only I'll do something for others? You know, the basic thing is a person feels not understood. हमें कोई समझते ही नहीं, हमारी दिल की बात कोई समझते, और जितना गहरा भावनाएं होगी किसी की, उतना ही उनको कठिन मालूम पड़ता है कि कोई मुझे समझ भी रहे हैं। तो if you are much deeper person with deep feelings, you will always feel nobody understands me, and that's how it should be. When you feel people all understand, they all understand me, that means you have not discovered your own depth. The deeper emotional being you are, you will end up feeling no one understands me. That's why, you know, when you write a poem, you always feel there is something more you can write about it, right? Right. Nobody can understand, because feelings can never be 100% expressed. मनुष्य जाति की ये पहले से यही रही कि वो एक्सप्रेस, उसका अभिव्यक्त करने की लाखों चेष्टा करता है। अपने भीतर का जो भाव है उसको किसी तरह से मैं शब्दों में या व्यवहारों में बांध के बाहर व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है, वो असफल ही रहा है। इसलिए इस तरह की फीलिंग होता है, अच्छे व्यक्तियों के दिल में होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, ऐसा होता है। मगर तब इनको ये देखना पड़ेगा,
कोई कोई तो समझेगा और समझने वाले हैं, जी और जी ज्ञानी समझेंगे, या ये चेतना जो अनंत चेतना है जिसने हम इन सबको पैदा किया वो समझता है। ये विश्वास आ जाए ना, दुखी नहीं हो जाएंगे फिर। इतनी भीड़, इतने लोग, इतने सारे रिश्ते, इतना सारा काम, और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी इस टाइम पे देखी जाती है वो है डिप्रेशन, लोनलीनेस, एक अकेलापन। वो जो हम सुनते आए हैं कि भीड़ में भी इंसान अकेला होता है, पर वो मैंने हमेशा पॉजिटिव में सुना था। ये जो डिप्रेशन आया है, कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, एक व्हाई ह्यूमन काइंड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ थिंग लाइक दिस। हाँ, वो देखिए, हमारा 3 शरीर होते हैं वैसे तो, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारा मन जो है सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर से भी बड़ा है। अक्सर लोग समझते हैं मन शरीर के अंदर है, तो ये नहीं, शरीर मन के अंदर होता है। तो ये मन वाली जो शरीर है, प्राणिक शरीर, जब ये सिकुड़ने लगता है तब व्यक्ति दुखी हो जाता है। नहीं, अब आनंद, आप देखो, जब भी आप खुश होते हो आपका अनुभव क्या है? आपके भीतर से कुछ ऐसा फैलता हुआ अनुभव है ना, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। खुशी के साथ कौन सा संवेदना अटैच्ड है? फूलता हुआ, फैलता हुआ। देर इज ए सेंस ऑफ एक्सपेंशन वेन एवर यू फील हैप्पी, राइट? अभी वेन एवर यू फील अनहैप्पी, वॉट इज द सेंसेशन वी फील? लाइक दैट समथिंग इज क्रशिंग, contracting. So there is something in us that expands and contracts. This is our प्राणिक शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर छोटा होता है तो डिप्रेशन, और छोटा होता है तो ऐसा लगता है कि इतना टाइट जैकेट हमने पहन लिया, इसको उतारो। यही सुइसाइडल टेंडेंसी है। सुइसाइडल टेंडेंसी वही है, इतना टाइट हो गया जैकेट, तो वो घुटन होने लगता है, हाँ, उसको फेंकने की मन करता है। तो सूक्ष्म शरीर को मजबूत करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम, क्रिया, ध्यान ये करो तो सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है। इसलिए डिप्रेशन आदि ये सब बीमारियों को बहुत आसानी से योग से, प्राणायाम से, ध्यान से हम पार कर सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। और गुरुजी कहीं ना कहीं एक और चीज जो इस टाइम पे मुझे means the more time I'm getting with myself and I'm thinking a lot these days and I'm seeing things around me, मुझे हमेशा लगता था कि जब भी मतलब हर रिलीजन हमें पीस और हैप्पीनेस और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए था। अचानक से हम लोगों को ये फीलिंग आने लगी है कि रिलीजन को हमें प्रोटेक्ट करना। ये क्यों हुआ? It was always made to make us comfortable, happy, at peace, to make us understand humanity. It was there to protect us. How we are now seeing our religion as if we have to protect that bigger thing, that bigger wisdom. Why we are becoming a protector of that? या ये वैसा ही जब खतरा महसूस करते हैं किसी के बारे में भी, आप जो अपने साथ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ से खतरा लगता है, लोग उसको प्रोटेक्ट करने कूद पड़ते हैं। मान लो कोई कहता है मैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता हूँ, तो कि वो डेमोक्रेसी उनके लिए बहुत अहम की बात होती है। इसी तरह से किसी को लगता है मैं जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट करूँगा, या मैं मजदूर यूनियन को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं मेरा ये नियम है, लॉ है। वो कोई मतलब विमेन को प्रोटेक्ट देना। जहाँ पर भी खतरे का महसूस करते हैं, ऐसे धर्म भी एक है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिलीजन इज समथिंग वाई एवरीबॉडी आइडेंटिफाइड।
when they feel that the religion is need to be protected because it is in danger. So people come in that, but in all these situations they forget that there is a bigger power that is taking care of everything. You know, no doubt There's a you bigger should, power. yeah, no doubt you do what you need to do. You know, if there is an assault on your tradition or on your you know, way of worship, or if people are not respecting your space, they are, then you must take your steps to protect, no doubt. But do not forget there is a bigger power that is taking care of everything. Exactly, that was I was trying to understand, because I believe there is a bigger power who's actually taking care of a lot of things for us. So Yeah, we have to just be a good students to learn it rather than becoming a correct. protector. और ये कई बार हम इमेजिन कर लेते हैं दूसरे हमारे एनिमी हैं। जी जी एक्चुअली ऐसा नहीं होता। लोगों से बात करो, बैठो, तो पता चलेगा कि उनके मन में भी भय है, आपके मन में भी जो भय था, तो दोनों हाथ मिलाओगे तो वो भय वहीं की वहीं निकल जाएगा। Albert Einstein said that the man with the big dreams is more powerful than man who knows all the facts. कि वो अपने अंदर एक जज्बा, एक बड़ी चीज का सपना लेके चलना बहुत जरूरी है. You know, करेक्ट, that's something which should be there in you. Think as big, as positive as you can, rather than just know the facts. तो वो चीज आपको शायद जो आपने बोला कि मन जो है वो शरीर से बड़ा है. You know, so the more you open your heart, the more you will be able to करेक्ट। embrace people. एंड द मोर यू नो यू डोंट नो। जितना हम जानते हैं अज्ञात ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये सच्चा ज्ञान है। कोई कहते मैं सब कुछ जानता हूँ, तो समझ लेना तब तो जड़ता आ गई। ए पर्सन होते हैं आई नो एवरीथिंग, देन ही गेट्स इनटू ए सॉर्ट ऑफ इनर्शिया। बट द मोर यू नो, योर आईज आर ओपन टू द फील्ड ऑफ अननोन, there is so much more that needs to be known, that keeps you alive. अब मान लो आपको खाना बनाना नहीं आता हो, आप पहली बार किचन में घुसते हो कुछ खाना बनाने के लिए, तो आपको हर चीज़ें बिल्कुल नज़र में आती है, हर चीज़ें एकदम अलाइव दिखता है वहाँ। जी बट जो जिनको रोज का ये काम ही है, वो ऐसे घूमते फिरते तड़का लगा देंगे, इधर थोड़ा कर देंगे, उधर दाल चढ़ा के बाहर आके बातें करेंगे, फिर 10 मिनट में आके करते रहेंगे। नहीं, जो पहली बार जा रहा है ना, ऐसे ही पहली बार जो गाड़ी चलाता है, साइकिल चलाता है, उनको सड़क के हर पत्थर अच्छे से दिखते हैं। तो सब कुछ जानने की जो ये अहंकार होता है, वो जड़ता की ओर ले चलता है। मगर सच में जो जानते हैं उनको यही मालूम पड़ता है कि जो है ना, हम अज्ञात की ओर जा रहे हैं। जी जी गुरु जी, आपने जब बोला ना कि किचन में जाके, मतलब इस लॉकडाउन में वैसे तो आप पूरा टाइम काम कर रहे होते हैं तो आप किचन में कभी नहीं जाते. दिस टाइम व्हेन इट वाज लॉकडाउन एंड वी हैव नथिंग टू डू, सो आई सेड लेट मी मेक समथिंग दिस टाइम. So making even a dal khichdi was such a big thing for me. You said everything was actually alive in the kitchen. All those spices and all those rice were like talking to me at that point, that how will you make it? So making even a dal khichdi was such a big emotional high for you. So Correct. you said so right that I don't know is such a big power. You say I don't know and go for it. It या makes you feel so. छोटी छोटी चीज़ों को पूरे ध्यान से करना, यही जो है ना, एक बड़ी महत्वपूर्ण साधना है। यही साधना है, हर चीज़ को पूरे महत्व ध्यान से करते रहना और हर चीज़ में आनंद लेना, हर चीज़ में आनंद लेना। सबका तलाश तो आनंद का ही है भाई।
everybody is moving towards Anand only. Everybody wants Anand. So that is what is really, and you can find Anand in all small things. Do it 100% in the moment rather than sitting and only thinking about the future or getting upset about the past. In my profession, when I get down on the floor to direct a scene also, the best thing is when we discuss on the set with an actor. मेरी फेवरेट लाइन ये है, मुझे नहीं पता तू बता. I don't know, you tell me. Because it's an emotion. If it is, Correct. you are going to pray. So first of all, you tell me, because it has to be your expression. So I really identify with that thing of, okay, I don't know is such a big thing. You say this, I don't know, you tell me. You know, it gives you so much of strength. तो गुरुजी मेरे को अब इन फ्यूचर जब हम इस कोविड से जब भी हम बाहर आएंगे, और बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे. प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बट what are the basic three things you want to tell us that as human now, जो हम पहले भी आपसे सुनते आए हैं, but as a human we should be more careful in our lives now onwards? First of all, we must think that we are starting everything new. We are starting a new life. We should keep aside all that what we were doing. Now we must think that we are getting into a new beginning. When you go with this idea, I am going to start something new, there is a lot of enthusiasm and you would like to take fresh look at everything. Because old paradigms may not suit in the new circumstances, new situation. Number one. Second is, we need to know that we cannot go on with competition, rather now is the time for cooperation. People should cooperate with each other. You cannot have cutthroat competition like we used to do before this COVID-19. Now is the time that everybody has had loss, everybody is suffering, there is lot of pain in the world, and the countries and nations are also thinking on this line of we need to cooperate, not compete at this moment. So this is the second thing, cooperation. And third thing is, there are a lot of people who would have lost the job. There are a lot of people who are very poor, who may not have any resources to stand up. For them, we need to be compassionate. How to be compassionate? Not just giving them some dishes, not just giving them, rolling them out some soaps. What they need now is skill development, that is helping them to stand on their feet. किसी को थोड़ा सा दान पुण्य कर देने से नहीं चलेगा, मगर हमारे जनता को अपने आत्मनिर्भर, अपने पाँव में खड़े होने के लिए हमें सिखाना पड़ेगा. उस दिशा में भी हमको सबको मिलके काम करनी पड़ेगी. और इन सब के साथ, इन सबका मूलभूत रूप यही है, हम अपने मन को तनाव मुक्त करना. वी हैव टू कीप आवर माइंड free from stress, and that can happen through only and only through meditation. This is something which is ये बातें हमें पहले भी आनी चाहिए थी. इनमें से कुछ ऐसा नहीं है कि जो कोविड की वजह से ये सारी वो चीजें जो अगर हमारे पास पहले से ही होती तो शायद हम लोग और बेहतर होते. But moving ahead, this is something, it's a great lesson for all of us, that if we take this ahead, world will be a beautiful place to live. We would be able to give a better world for the coming generation. देखिए हम कैसी दुनिया हम पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए. जरा सोचना, अपना सबने, we are already done, we are all going one step towards the exit route, but what type of world we want to give to our younger generation? You know, a world which is cutthroat competition, which is full of crime and violence, selfishness and lack of human values. ऐसी दुनिया हम कैसे छोड़ के जाएं बताओ.
अब देख, सी, इन दिस लास्ट 2 months नो क्राइम्स आर रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड. कहीं भी डकैती नहीं हुई, चोरी नहीं हो, बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स नहीं हुए, कोई क्राइम ही नहीं है दुनिया में. सो we can envision a society free from crime. अपराध मुक्त जो एक समाज है उसकी परिकल्पना हमें चाहिए. हाँ, बाहर का कोई अपराध तो नहीं, मैं घरों में तो डोमेस्टिक वायलेंस तो बढ़ गई जगह जगह, उसका तो अलग अलग कारण है. क्यों हमने कभी लोगों को ये नहीं सिखाया एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें, नॉन वायलेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेट कैसे करें. ये सब बातें हमने सिखाना भूल गए. सिर्फ हम उनको बाकी स्किल्स सिखाते रहे, अपने मन को कैसे हैंडल करना है ये नहीं सिखाते रहे. तो अब ये बात बहुत आवश्यक पड़ गई है कि हर व्यक्ति को अपने मन को मजबूत, अपने भीतर आत्मबल को बड़ा करे. तब क्या होता है, वो उसका व्यवहार भी मधुर होता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है. कई लाभ होते हैं इससे. नहीं गुरुजी, और ये फैक्ट है आप that guilt in us is still there, that what are we leaving for the coming up generation. That ये सवाल बहुत ज्यादा उठता है मेरे मन में, that what the kind of love and compassion what we got from our parents, we were unable to give it to our kids in that way. वो हम नहीं दे पाए. मतलब मैं अभी ये बात करते करते मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं छोटा था और मैं अपने पिताजी के हाथ पे लेट के वो मुझे लोरी गा के सुनाते. मुझे नहीं पता वो वाला वक्त मैंने अपनी बेटी को दिया कि नहीं दिया. प्यार जरूर दिया, पर वो वाला वक्त, वो जो एक आपने बोला ना कि वो वक्त नहीं था, वो सीख थी टू लर्न फ्रॉम, यू नो, कि हाउ अपने मन के भीतर झांकना सिखाना जो हमें मिला, तो शायद हम अपनी जनरेशन को अभी तक नहीं दे पाए. एंड इट्स हाई टाइम दैट वी लर्न एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर देम. कुछ ऐसा करके जाएं जो उन्हें लगे कि हाँ हमारे लिए कुछ हुआ. बिल्कुल बिल्कुल. अब देखिए, जब अब हम लोग छोटे थे तो अपने घर में और बच्चों को भी लेके सबसे मिलजुल के बातें करते थे. अपना पिताजी होते है ना, एक जनरेशन पहले, वो सबको समान रूप से सबके साथ मिलजुल के बैठते थे, बातें करते, उनको समझाते थे. एक तरह का कम्युनिटी फीलिंग डेवलप होता था. सभी जाति के, सभी धर्म के सभी बच्चे आते थे, तो सबके साथ वो एक मिल बांट के रहने की जो बात होती है हमारे गाँवों में आज भी है. इसी वक्त जाके देखे, अभी तक, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, इस वक्त तक की जो भी घटनाएं हुई हैं वो एक सपना जैसे नहीं लग रहा क्या अभी? बिल्कुल लग रहा है. एक मिनट जाके देखे तो हमको लगता है कि ये सब एक सपना रहा. जैसे आप स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, इधर गए उधर गए, फिर छुट्टी मनाने गए थे, वो सब इस वक्त कुछ भी नहीं है, सब निकल गया. आपने कितने मूवी बनाई, उसको प्रशंसा सुनी, कुछ बनाई, उसमें आपको सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं मिली, वो सब इस वक्त के लिए एक सपना जैसा हो गया. निकल अब गया. है नहीं, अभी कुछ हाथ में नहीं कुछ भी. ऐसे ही अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, ये भी एक सपना हो सकता है. ये भी एक सपना हो. ये भी सपना है. अच्छा, और आगे जरा अपना मन को प्रोजेक्ट करके देखें, और 5-6 साल और भी आप कुछ करोगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, आपके पोते नाते दोते सब होएंगे, आप खेलोगे, वो सब हो जाए, और ऐसे देखते देखते और 20-25 साल ऐसे बीत जाएगी. वो भी एक सपना सा ही है. तो ये सारा संसार, सारा जीवन, ये मन, ये सब एक सपना जैसा लगता है. और किसको लगता है सपना, वो सच है. सपना सच नहीं है. और जिसको लगता है ना ये सपना लग रहा है मुझे, ये हम कहते हैं ना, वो सच है.
वो कौन है हमारे भीतर, कौन है ये, कोई व्यक्ति है क्या, क्या है। और ऐसे देखते देखते हम भी मर जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, मगर फिर आप कहीं और जगह आपका प्रकट होगा वही चेतना, आप फिर जन्म लोगे कहीं पर, फिर ये सब सिलसिला चलेगा। तो ये कोई चीज़ है वो बार बार जन्म ले रही है। फिर एक और सपना। हाँ वो, और फिर एक सपने के थ्रू गुजरती है। मगर ये सपना करके एक क्षण में जाग के देखते हैं तो हमारे भीतर कोई एक चेतना है, कोई सत्ता है जो कभी नहीं बदली, वैसा ही बना रहा। अलग अलग जैसे आप तो मूवी करते हो, आप डायरेक्टर हो, अलग अलग मूवी निकली, अलग अलग सीन्स निकल गए, मगर सीन के पीछे जो डायरेक्टर है वो मैं हूँ। इसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। अब विलन का भी उतना ही आनंद ले रहा हूँ जितना हीरो का आनंद ले रहा हूँ। तो वो जब तक हम डायरेक्टर के साथ जुड़ नहीं जाते या ये नहीं जानते हम डायरेक्टर है ये सारे मूवी के, तब तक हम उतल पुतल में रह विचलित ही बने रहेंगे। अपना डायरेक्टरपन का अपने को जरा सा भी होश आ जाता है तो एकदम प्रसन्न, शांत और मस्ती छा जाती है जीवन में। हाँ, कि ये किरदार तो सब आते आते हैं और चले जाते हैं, पर आपके पास वो यादों की तरह ही रह जाते हैं, सपनों की तरह ही रह जाते हैं। बहुत गुरुजी, कितनी अच्छी बात है ये कि आपकी कहानी अपने आप में, आपका जीवन अपने आप में एक सपना, एक कहानी की तरह खत्म हो जाता है, फिर एक दूसरी कहानी शुरू कर। So it is so beautiful that you have to be the director of your life. You are. You are, but for you, many times you forget you are the director, you become the character. Actually. और डायरेक्टर को खोजते रहते हैं, फिर बोलते जब कैरेक्टर को हमेशा कंफ्यूजन होता है, डायरेक्टर से कैरेक्टर अलग हो जाता है तो उसकी तो कंफ्यूजन ही, उसको पता नहीं अगला डायलॉग क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर बोलता अरे डायरेक्टर ही नहीं मिल रहा, कहाँ हो गया भाई, क्या हो गया, विचलित हो जाता है। तो हम अपना कैरेक्टरपन को छोड़ के, इनफैक्ट कैरेक्टर तो चलता रहे मगर हम डायरेक्टर है इस बात को जान ले। पूरा फिलॉसफी, साधना, प्रेम, सेवा, इन सब का एक ही गोल है, बस तुम ये जाके जानो ये सब सपना है और तुम डायरेक्टर हो। तुम डायरेक्टर। यही वेदांत है। हमारे देश का सबसे बड़ा देन दुनिया के लिए यही है, वेदांत। हम देखते हैं, हम कहते हैं ये दुनिया कोई किसी ने बना के छोड़ा नहीं है। ये नर्तक और नर्तन में जो संबंध है वैसे दुनिया में ही भगवान है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा खुद ही दुनिया बन गए जी। और ये जो यहाँ मैं आपकी बात ही बोलूं कि वो हम जो परमात्मा की बात कर रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली उसी मन में बैठा है जो हमसे बहुत ज्यादा विशाल। करेक्ट, ये बिल्कुल कि वो उसी मन में जाके बैठा, हम अंदर झांक नहीं रहे हैं, हम अपने अंदर नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली वो अपने मन में जिसको हम इतना सा मान रहे हैं, जो कि बहुत विशाल है मन, वहां पे वो अपना, तो जिस दिन अंदर झांक लेंगे तो शायद हम खुद के डायरेक्टर बन जाएंगे। बस या खुद की डायरेक्टर पन को पहचान लेंगे, अरे मैं ही तो डायरेक्टर हूँ। गुरुजी, इट हैज बीन एन एक्सपीरियंस मेरे लिए तो ये कोविड इस वजह से भी कि मैं आज आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ, और इट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड these whatever minutes I have got from you I'll cherish throughout my life। और जैसे ही यहाँ से निकलेंगे मुझे लग रहा है मैं सीधा आप ही के पास आऊंगा। हाँ। और ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपसे समझने को मिलती हैं। You make life beautiful for so many people and I'm one of them। Thank you so much। बहुत अच्छा। Thank you।